Subscribe to Dental News Channel and also press the bell icon for latest updates. Share and comment on the links. Thank you. Hello and assalamu alaikum. This is Dr. Saad, and I welcome you again to another live session with another person, another specialist of their field through our platform. What we're doing through our platform is that we're allowing more people to use our platform and talk about what their specialities are. So, for today, we have a very special guest. We have Nayab Zafar, who is a clinical psychologist, and she is also the co-founder of a very wonderful initiative which is called as House of Pebbles. We'll be introducing House of Pebbles through the course of the interview, but let's just talk about Nayab's educational career. She did her primary schooling from City School Nawab Shah, and having a passion for psychology, she pursued that by doing a bachelor's from Berry University from 2012 to 2016, and then she again pursued her passion more, and then she did her master's in clinical psychology. So Nayab is also running, as I said earlier, she's also the co-founder of a online slash in-person counseling, you can say, hub, or a psychologist hub, which is called as House of Pebbles. And she's also a visiting faculty at Beria University, and she's also associated with Taj Consultant Clinics for the past for a couple of years, I believe. So, without further ado, I would like to introduce Nayab to you, Nayab. And how are you, Nayab? I'm good, Saad. How are you? Thank you so much for inviting me. I'm doing good. So, Nayab, let's just get into it and let's just talk about House of Pebbles first. So, what I believe is that House of Pebbles is a, as I said, online slash in person consultation hub where you have given the platform to people who have the same passion as you to pursue their careers. And let's just talk about House of Pebbles first. House of Pebbles is basically a private practice setup where we have psychotherapists and counselors on board. We are now providing in-person as well as online sessions to clients. So online are obviously किसी भी world के किसी भी corner से, and in person for now we are offering in Karachi only. And this space was actually made to bridge the gap between meeting a therapist and suiting your needs, so then finding a good therapist for yourself, which is a huge gap, because usually you will see जो professionals जिनके बहुत ज़्यादा experience years होते हैं, they charge highly, and people are not able to afford the session charges because psychotherapy में weekly session charges होते हैं most of the time. So then there are those therapists who do not have spaces in Karachi where they can practice. So we provided them this space, and we are also having a good check on them by having supervisors on board so that their treatments and their procedures are ethical and quality standards. Right, that's a brilliant initiative because इस तरह के initiatives लेना from people who know their field is very good, because होता ये generally that people who are investors, they invest in such businesses and or such areas, and then they don't have a checkup. So it's brilliant that a clinical psychotherapist has this, is the co-founder of such a place. And चलिए नया आप थोड़ी बात करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज समथिंग विच इज इट्स बेसिकली लाइक अ वॉल्केनो, आई वुड से, बिकॉज नीचे जो है केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, एंड देन एकदम से you, I'm sure you must have the pleasure, I would say, to treat such patients जिनके इस तरह के mental health issues होते हैं, and then you provide them with counseling, and then they come about, then they become totally different people. So how important is mental health to you in terms of the everything?
See, Saad, mental health is something जो अगर fit नहीं होगी, then physical health then doesn't matter, because if you are unable to take decisions, if you are unable to think correct, you are unable to take decisions that I need to go to a doctor for my fitness, then of course बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, बाकी सारी चीजें जो है उनका उनका कोई मीनिंग नहीं रहता. So mental health is still a stigma, is still a taboo in Pakistan. We are growing. Especially now in COVID times, we have seen a bloom of mental health awareness, and people working on this initiative on their own level. So mental health is tarah to important hai, but it is also important because times like these in COVID-19 या natural disasters जो भी आ रहे होते हैं, उसमें हम physically for example we are doing well, but there are so many emotions that are going on inside us where we are feeling we will survive or not, हमारे business का क्या होगा, हमारी जो लोग recent graduates हैं, हमें कोई job मिलेगी नहीं मिलेगी, and all such questions. फ्रंट में इन फ्रंट फेस वैल्यू में तो ये शो कर रहा होता है कि नहीं वी आर डूइंग ओके, बट इनसाइड इट्स ईटिंग अस अप. And because maybe we cannot see that as such, या tangible issue नहीं है. So for example, किसी को चोट लग जाती है and they are bleeding, and we can see that. So maybe that's why people take it more seriously. But generally mental health issues are not visible. वो हमारे अंदर ही वो चल रहे होते हैं, and maybe that is the reason people do not take it seriously. But it again is the core of your functionality as a person. So of course, mental health in every domain as a community, in educational institutes, in professional institutes, organizations, it is one of the key factors where you can be healthy and do more, even more, अपनी capacity से quality meet करवा सकते हैं. But if you are not doing well mentally and you are not taking care of yourself and you are just ignoring it, whether you are a professional in any field or not, so of course it is going to bring you down. Now you talked about you can say I won't say illiteracy, but awareness की जो कमी है in terms of mental health. So what measures should we take in terms of individuals as well as collectively कि जिनसे जो है हमारी organizations बेहतर हो सके in terms of mental health? I'm talking about families के अंदर भी ये issues आपने I'm sure पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, वो आपको बताते होंगे चीजें, बट डू यू थिंक ये चीज और ज्यादा बढ़ गई है, या तो जिस तरह इसकी अवेयरनेस पैदा हुई है? क्योंकि होता ही है जब कोई चीज किसी के बारे में अवेयरनेस आती है तो बहुत सारी लोग जो हैं उसको अपने आप को उससे कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं. तो डू यू थिंक जो बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव वाली जो चीज होती है, तो डू यू थिंक दैट हैज गॉन अप, और मतलब in general or in truth people have realized that mental health is something? नहीं, of course, जिस तरह हम किसी भी illness के लिए कहेंगे, like we talk all the time that how diseases and illnesses have increased and we are all the time finding new issues, new diseases जो कि physically हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं. In the same way, mental health issues are also rising up. Mental health issues में भी नई चीजें हमें समझ आ रही हैं that they are growing because of the changes in the era, because of the changes in the century that we are in. तो उसमें आपके पास new issues आ रहे होंगे. We cannot dismiss this thing कि कोई अगर feel कर रहा है तो वो नहीं है, या वो उनको सिर्फ लग रहा है, ऐसी चीज हो नहीं सकती. We cannot dismiss it that way, क्योंकि of course if they are feeling it, if they are going through it, जैसे मेरे पास कभी कोई questions आते हैं कि do you really think that they are going through it, या ये सिर्फ इनको लग रहा है, या ये सिर्फ जो फीमेल्स हैं फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ्स हैं वो सिर्फ उनको लग रहा है कि उनको ये इशू हो रहा है. सो हाँ, जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं तो उसके बाद उनको कोई हार्ट का इशू नहीं है, बट इफ दे आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम कि मुझे हार्ट का कोई इशू है या मुझे सर दर्द हो रहा है, so if it's not a physical problem, it is for sure a mental health issue. It is a problem that is on maybe emotional level, that is maybe on cognitive level, that needs to be addressed. तो हम ये तो कह सकते हैं कि जिस तरह टाइम चेंज हो रहे हैं, जिस तरह सारी चीजें बढ़ रही हैं, उसमें ही इंक्रीज आ रहा है कुछ ना कुछ इश्यूज में.
हाँ, ये है कि अवेयरनेस भी साथ साथ बहुत है, लेकिन कभी कभी लोग इस चीज को यूज भी कर रहे होते हैं टू गेट आउट ऑफ सम थिंग्स, टू गेट फेवर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी हो रहा होता है। बट अगेन अगेन हम किसी को लेबल नहीं कर सकते दैट इफ दे आर सेइंग इट तो ये वो यूज कर रहे हैं या दे आर प्लेइंग द विक्टिम रोल, जो कि बहुत बार लोग ये वर्ड यूज कर लेते हैं, दे डोंट रियलाइज कि हम अगर किसी के लिए यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वो वाकई में गुजर रहे हो, हमें नहीं लग रहा, लेकिन वो वाकई में इस चीज से गुजर रहे हो। So we cannot say that unless a professional gets to meet them and understand their situation कि क्या हो रहा है उनके साथ and do they really need help या वो क्यों इस चीज को यूज कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स आप जिस तरह देखते जाएंगे कि लोग जितना भी इंडिविजुअल लेवल पर इस चीज को स्प्रेड कर रहे हैं, अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। चाहे आप हमारे यंग एडल्ट्स को देख लें, इस जनरेशन को देख लें, आई फील सो हैप्पी कि जो स्टूडेंट बॉडी है वो इतनी स्ट्रांग होती है। मैंने खुद ज्यादा यंग एडल्ट्स को ही केटर किया है, तो उनमें ये चीज की अवेयरनेस देखना, उनको ये समझ आ गया कि ठीक है, इवन इफ माय फैमिली इज सेइंग समथिंग दैट दिस वोंट हेल्प मी, बट आई नो दैट काउंसलिंग सेशंस और साइकोथेरेपी सेशंस आर गोइंग टू हेल्प मी, सो दे डू टेक अ स्टेप फॉर दैट, this way or that way they do take a step for that, and they are doing a favor, all of us who are taking therapy, who is taking counseling session or working on their mental health, we are doing a favor to our next generation, क्योंकि हमसे पहले वाली जनरेशन ने इस पे काम नहीं किया और उनके ट्रॉमास जो हैं वो एक जनरेशनल ट्रॉमा, एक टर्म यूज करते हैं, वो जनरेशनल ट्रॉमा पास ऑन होते जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ फादर, हमें शिकायत होती है, अक्सर लोगों को अपने फादर से शिकायत होती है, मेल्स को अपने बेटों को अपने फादर से शिकायत होती है कि वो गुस्से के बहुत तेज हैं या वो इस तरह अम्मी के साथ वैसे बिहेव करते हैं, इश्यूज लाइक दैट। So if that person didn't address this issue through psychological help or through learning coping strategies, वो चीज फिर अगेन बेटे में आ जाती है या बेटी में आ जाएगी वो चीज, and that's how it becomes a generational trauma. So all of us who are taking it seriously, who are seeking help, we are actually doing a favor to ourselves and the next generation, which is very, very much important. Thank you for a detailed input on that particular question because बिल्कुल आपने सही बात की कि जो जनरेशनल जो चीज़ आ जाती है वो उसको ब्रेक करना काफ़ी एक यू कैन से इट्स अ वेरी हार्ड टास्क फॉर एनीवन, और अगर प्रोफेशनल हेल्प इसके साथ ली जा सके तो इट्स लाइक इट्स अ ब्रिलियंट थिंग टू डू। नायाब, आपने बात की कोविड की, so let's just touch upon that topic, that how COVID has affected mental health, because we've seen huge businesses getting losses and then getting closed after a couple of months or 3 months. And उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि since COVID को, अभी मैं कल ही एक start पढ़ रहा था that yesterday it's been a year since COVID happened. The first Yes. patient was diagnosed yesterday. So Yes, this sir. year has passed by like a flash. एंड हमने ये देखा है कि मेजर जो चीज़ थी वो कोविड ही रही है। तो व्हाट व्हाट डू यू थिंक द पीपल अब शुड डू इन ऑर्डर टू कोप अप विद दिस? वी हैव सीन दैट कुछ लोगों का माइंडसेट अभी भी यही कहता है कि कोविड जो है चीज़ कुछ है ही नहीं, एंड कुछ माइंडसेट कहता है कि नहीं, दिस शुड बी इसके खिलाफ प्रिकॉशंस डबल कर लेनी चाहिए सिंस इट्स द सेकंड वेव राइट नाउ। सो वी स्टिल हैव वी डोंट हैव पीपल ऑन वन फ्रेम। सो यहाँ पर मेंटल हेल्थ कितना कितना बड़ा रोल प्ले करती है, उसके ऊपर प्लीज थोड़ी सी बात करें। Start starting from how it has impacted us और कोविड के क्या इफेक्ट्स हुए हैं ऑन मेंटल हेल्थ। तो जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था बैक इन मार्च, हमने ये चीज देखी दैट people, because they were confined in their homes and not everyone was having access to online facilities, they or not everyone was able to take online sessions, so health was deteriorating like anything. और उनकी मतलब I was seeing cases, for example, I was seeing someone for a year now, or and we were about to end the treatment, but because of the lockdown और फिर उनका वो confine हो जाना, फिर families के issues और वो सारा बहुत close off में face करना, उनको दोबारा से एक peak situation पे लेकर आ गया था। And we were seeing that domestic violence was increased.
उसके साथ साथ suicide and self harm was increased बहुत ज़्यादा, because you were staying in the same home, you weren't able to meet friends, they weren't able to go out, studies का pressure अलग, क्या हो रहा है पढ़ाई में, educational institutes कौन से अब steps ले रही हैं, because everything was uncertain, it is still uncertain. तो वो एक और आना, उसके साथ साथ students who work side by side to support themselves, वो चीज़ खत्म हो जाना. So everything was kind of a mixture, and then it started impacting their mental health. और उसमें ही आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि पहले ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी बना लो और कुछ प्रोडक्टिव चीजें करो और ये सारी चीजें करो. दैट वाज अ प्रेशर टू मोस्ट ऑफ द पीपल कि हमसे नहीं किया जाता, बिकॉज दे वर अंडर दिस प्रेशर. They were thinking about different things, how they will cope. People were not realizing, people who were promoting this thing कि इसमें कुछ productive बैठ के कर लो, they were not realizing that we were in a pandemic. We are in a pandemic situation जहाँ पे just to survive is a big thing. कि मेरा क्या होगा, मुझे किसी सिचुएशन से कोविड तो नहीं हो जाएगा, और मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी आगे लाइफ में क्या होगा, इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको क्या होगा. सो पीपल वर बेसिकली प्रमोटिंग समथिंग व्हिच वाज नॉट डूएबल फॉर एवरीवन. तो इस तरह की सिचुएशंस और लोगों को जो है अपसेट कर रही थी एंड वर ब्रिंगिंग देम डाउन. नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है व्हेन पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. सो honestly, अब थोड़ी सी सिचुएशन अगर इस तरीके से बेहतर हुई भी है, that we have a kind of mixed modality. Some days we are going for our classes or at clinics, other days we are doing things online. तो यहाँ पे हम ये चीज उसी को अगर देखें कि SOPs follow अपनी सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं, because we never know that because of us किसी और को जो है हमसे ट्रांसफर ये चीज हो जाती है. Talking about this particular thing कि doctors are at risk all the time in this situation. उनके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, बिकॉज दे आर द फाइटर्स, दे आर देयर टू एड्रेस COVID-19 और उसके इश्यूज, एमरजेंसीज में सब कुछ. बट पेशेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि नहीं, दिस इज सीरियस एंड दे हैव फैमिलीज टू, दे विल गेट अफेक्टेड टू. तो यहाँ पे जो है बहुत कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा ये चीज आ जाती है कि हमारे वो लोग भी जो who are taking it seriously is are getting affected from this particular thing, this particular attitude, I would say, कि नहीं है ये चीज, या इसमें क्या चीज करनी है, क्या चीज करनी चाहिए, इस चीज से वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट कि इस चीज को एड्रेस किस तरह करना है इन मेंटल हेल्थ इश्यूज को ड्यूरिंग कोविड या पेंडेमिक में, किस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम अभी क्योंकि सर्वाइवल मोड में हैं, तो हमें फिर सिर्फ कोविड को ही फोकस करना होगा, दैट वी सिक्योर आवरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इशू, ताकि वो ना सिर्फ हमारे लिए पर दूसरे के लिए भी एक रिस्क फैक्टर ना हो. क्योंकि मैंने जैसे यही बात की, नॉट ओनली पेशेंट्स आर स्केर्ड, डॉक्टर्स आर स्केर्ड एज वेल, because temperature check is not the only is the only thing that we can do, but it is not the only symptom. तो आपके पास आ रहा है कोई पेशेंट, हो सकता है कि उसको कोविड है, so doctors are scared too and they have families too. I hope I addressed your question, or if there's anything, please do ask me again. No, you did, because as you said कि COVID ही वो बेसिक चीज है जिसके ऊपर अभी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, because it's the root cause to all problems which have arisen over the past. We are in that survival mode right now. तो यहाँ पे अभी कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते other than the survival mode. आप उसमें किस तरह अपना ख्याल कर रहे हैं, and then looking at it from a community perspective. मैं ख्याल करूँ that if I am coming to your house, firstly मुझे तो आना नहीं चाहिए, पर for example if I am visiting you, तो मैं वो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हूँ या नहीं कर रही, या मैं अगर कोई दावत कर रही हूँ तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स में फॉलो कर रही हूँ. एंड सेकेंड वेव हम देख रहे हैं और स्ट्रांग हो गई है, बिकॉज पीपल आर जनरली ऑफ दिस एटीट्यूड नाउ, फर्स्ट वेव में कुछ नहीं हुआ, सेकेंड वेव भी हो जाएगी, बट बिकॉज ऑफ दिस वो और चीज जो है इंक्रीज होती जा रही है विथ रश. Right, rightly said, bilkul, because it's like something which we have to live with right now, because we've seen over the past decades that things like these have happened. Spanish flu की example है, we have plague, तो उसके against भी remedies थोड़े अरसे के बाद आई, but people adapted
and we can't do much because जो जिन लोगों की जाने जा चुकी हैं इस चीज़ की वजह से, but ये है कि हम उनसे लेसन ले सकते हैं. You mentioned graduates in your talk, so in your answer, so let's just hit upon that topic. The dental graduates की मैं बात करूँगा, because अभी students are there who are currently giving exams. अभी हमारा usually November December जो होता है, those are the prof sessions. तो एग्जाम्स का टाइम होता है ये, और कोविड हैज हिट देम एंड देन दे हैवंट गॉट देयर ऑनलाइन, दे बेसिकली जस्ट स्टडीइंग ऑनलाइन. एंड मैं खुद कुछ मैंने भी लेक्चर्स लिए हैं, दोज आर ऑनलाइन. सो इट्स नॉट द सेम बिकॉज द क्लास इंटरेक्शन एंड द पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन. So, what is your message to these dental graduates to keep their morale up? And obviously they're an asset to our nation, because dental graduates जो हैं काफ़ी नंबर में अब ग्रेजुएट करते हैं हर साल में. एंड मुझे भी ग्रेजुएट किए हुए आई थिंक या ग्रेजुएट इन 2017, so मुझे भी तकरीबन 3 साल होने वाले हैं. तो it wasn't the same like it is now, because we see that एक लैपटॉप के आगे पूरी जिंदगी चल रही है या एक फोन के आगे पूरी जिंदगी चल रही है. तो what is your message to these dental graduates, what they should do, or graduates in general, what should they should do to maintain their mental health? साथ से यहाँ पर हम हमेशा, खासतौर पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, हम स्पेशली व्हेन वी आर इन फाइनल ईयर वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट ईयर कि वी विल ग्रेजुएट नाउ और फिर ये चीज़ होगी, एंड दैट इज द मेजर वरी दैट तो स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर्स. इट्स ऑल्सो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यही कंप्लेन कर रहे होते हैं दैट थिंग्स वोंट बी सेम, दैट यू गाइज गॉट टू in final year psychology students used to go for rotations, for internships, और ये सारी चीजें वो नहीं हो पा रही हैं अभी चीजें. तो हर कोई used to think about the next year when we will graduate, तो किस तरह चीजें होंगी, and it used to be a very happy feeling generally कि अब बस थोड़ा टाइम रह गया and then we will be a professional and what not. But I would say अभी का जो टाइम चल रहा है, living in the present moment would help you a lot. And I'm saying it from personal experience as well. I'm saying it because obviously I am in the pandemic situation as well. So ये जो worry होती है कि next क्या होगा. I started this organization House of Pebbles just 2-3 months before the pandemic, the lockdown, and I started also worrying कि how will we take it further. But it gave us an opportunity, और हर चीज जहाँ पर एक problem आ जाती है, it gives us an opportunity to create a solution, and then हम फिर jump करते हैं. So for example, let's talk about educational institutes. हमने कब सोचा था कि हम online पढ़ेंगे और इस तरह online classes होंगी. But this is also an opportunity if we see it like that, कि हमारी educational institutes ऐसे distant learning programs दे सकते हैं for students जो दूसरे cities में हैं, and then they can graduate अपने comfort zone में रहकर. So what I'm trying to say here is every difficulty is giving us an opportunity. हाँ, वो उस वक्त समझ नहीं आता, वो उस वक्त बहुत overwhelming लगेगा, but the more you stay in the present, and by present I mean right now, right in the moment, इस second इस लम्हे में, the more you will feel content. आपको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इतना ज्यादा आप स्ट्रेस नहीं लेंगे. बट अगर आप कल के दिन में भी झेल रहे होंगे कि कल क्या होगा, किस तरह होगा, मैंने सारी चीजें तो डेंटल की स्क्रीन पे सीखी हैं, मैं इसको कर कैसे पाऊंगा, सारे प्रोसीजर्स मुझे तो नहीं आते, मुझसे जो सीनियर है उसको ज्यादा आता होगा बिकॉज दे वर एबल टू डू द प्रैक्टिकल वर्क इवन मोर. अगर आप इसमें सोचते रहेंगे तो जो पढ़ सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो भी आप नहीं करेंगे. Living in the present moment helps us like anything. Like I was giving this personal example कि this initiative of mine, हम लोग in person से हमने start किया था, और हमारा बहुत बाद में plan था to start with the online sessions. But after waiting for a month or so, we started foreign से ही online sessions के लिए, and we couldn't believe it that it picked up the pace इतनी जल्दी. तो हर चीज, and that also was a surprise to me, and that also confirmed my belief कि नहीं, आपको solutions आ जाते हैं, and everything is hiding an opportunity in itself. The students के लिए भी है, the more you will be present focused, the more you will be stay in here and now. अभी क्या हो रहा है, अभी क्या कर रहा हूँ,
तो आपकी आपकी जो भी चीज लर्निंग है दैट विल बेसिकली बी समथिंग जो आप यूज कर सकते हैं आगे के लिए. जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स जो आप इस सिचुएशन में लर्न कर रहे हैं. आपसे पहले उन्होंने नहीं लर्न किया कि ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं. what if you become a faculty member of any university जो आपको एक टीचर की पोजीशन में हायर कर रहे हैं इसलिए कि आप डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स करवाएं. And because you are a student yourself in this situation, आप उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे. You face those problems, तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे. So think about it and from that mindset, from that attitude. क्योंकि परेशान होने से, ओवर थिंक करने से कुछ मिलेगा नहीं. आपकी तबीयत खराब होगी, आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे. So better not to do that. Alright, perfect. काफी अच्छा आपने sum up किया. Because living now, because हमने पहले सुना है that living in the past or think about the future, but you're saying that live now. Now is the time. Now is the era which you have to think about. Today, you have to think about today. Tomorrow, definitely. yes, but the thinking which you do today will help you to face a better tomorrow. In terms of this COVID thing, since जब तक ये रहती है, I don't know कब तक रहती है, और by judging by the looks of it, मुझे तो ये लगता है शायद next year के mid या you can't say anything because it's very uncertain. And I we would better not say it. Why? Because again वही चीज ना, पास्ट वाली चीज हमें गिल्ट में लेकर आती है and if we are in future तो हमें एंजाइटी में लेकर जाएगी. Constant thoughts of past आपको गिल्ट में होगा कि ये कर लेता, ये वो. फ्यूचर थॉट्स आपको एंजाइटी में लेकर जाएगी. सो इफ यू आर स्टेइंग इन द प्रेजेंट, इन हियर एंड नाउ, और आप नहीं सोच रहे कि ये कितना साल चलेगी या क्या होगा, या वो नहीं सोच रहे. आप सोच रहे हैं कि अभी क्या कर रहा हूँ, किस तरह आई एम मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ व्हाट आई हैव. बिकॉज आज हम जिंदा हैं, आज वी आर सर्वाइविंग, आज वी आर लिविंग अल्हम्दुलिल्लाह, एंड उस चीज को सर्वाइव कर रहे हैं, गुजार रहे हैं. So that is also a big thing looking at the situation we are in. जो जिन ग्रुप्स में मैं हूँ जहाँ पे हमारे फेलो डॉक्टर्स, हमारे जो कंसल्टेंट क्लिनिक्स के फेलो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, हर दूसरे दिन मैसेज मिलना कि आज फलां की डेथ हो गई, आज फलां की डेथ हो गई, is traumatizing itself, and it is keeping us in that anxious situation. तो फिर हम नेक्स्ट का सोचते रहें और ये ना सोचें कि आज मैं जिंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, एंड व्हाट आई कैन डू टुडे. किस तरह आज का जो चैप्टर है वो मैं उसको किस तरह अच्छे से पढ़ सकता हूँ, थ्रू मे बी वीडियोज, थ्रू मे बी टॉकिंग टू अ फ्रेंड, दैट कैन हेल्प अस गो थ्रू दिस सिचुएशन. perfect. आपने consultants की बात की. Let's just hit on the topic of dentists in general. Because we've seen that since we are the people, I'm a dentist myself, so we are the people who are in close contact with other people, other patients. Because according to the data which has put forward, that dentists are the people who are at most risk of acquiring this particular virus. So I don't know if you have encountered any dentists, but I've seen a lot of people who've just closed their businesses down, their practices down, just for the sake of providing safety to other people, or they're just taking in 2 or 3 patients and just emergency cases, कि ताकि इनका दर्द रिलीव हो जाए, या अगर वो दर्द भी अगर किसी टैबलेट से रिलीव हो जाता है तो देर प्रेफरिंग दैट रिगार्डलेस जो भी उनकी ट्रीटमेंट है या कॉस्ट है. तो डेंटिस्ट को बहुत ज़्यादा आई वुड से डेंट लगा है इस पर्टिकुलर कोविड से, एंड बीइंग अ डेंटिस्ट माई सेल्फ, मुझे खुद काफ़ी इसके ऊपर कोप अप करना पड़ रहा है. बट what is your message to the dentist in this particular area? Because again, businesses are closing down, jobs का बहुत ज़्यादा issue हो गया है. तो in terms of dentistry, I don't know if you've encountered any dentist at your practice, or if you have a online consultation with any dentist. But उनके दिमाग में तो पहली बात वो fear that COVID is something which can be, we are at higher risk. Second, हमें कभी भी क्लिनिक बंद करना पड़ सकता है. थर्डली, अगर क्लिनिक बंद हो गया तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो in short, what I want you to, from our platform, what I want you to, give the message out that dentists को what they have to do in order to cope up. इंशाल्लाह जब ये चीज़ ठीक हो जाएगी, that's another topic. But
इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम कैसे कोप अप करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन को? Saad, you are definitely right that dentists या ये जो area है is one of the most hit area because आपका बहुत close interaction होता है, and as I said पहले भी कि ना सिर्फ पेशेंट आप डेंटिस्ट से डर रहा है, डेंटिस्ट भी पेशेंट से डर जाता है ऐसी चीज में कि इफ दे वर केयरफुल इनफ, इफ दे वर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. अगेन एज आई सेड that I have family members who are dentists. I have friends and cousins who are still studying BTS. They are doing their house jobs वगैरह. So वो एक close interaction उसमें भी रहती है, and the stress level is super high उनका, because as you mentioned all these concerns कि किस तरह से होगा, क्या करेंगे, या फिर this only worry that I know dentists who closed their business for a while, and then after they were allowed to, they opened it, but there was this fear कि चलो मैं patients को treat तो कर रहा हूँ, but what if I transmitted it, और फिर उस मुझसे मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे घर में किसी बुजुर्ग को हो जाती है, तो फिर there is this then guilt too कि for example I am the reason of passing on this thing. मैं तो बच गया लेकिन किसी और को मैंने पास कर दी just because I was doing my job, just because I was taking care of other people. तो ये एक बहुत ही ज्यादा लेवल का स्ट्रेस है, और यहाँ पे जो बर्न आउट या कंपैशन फटीग हम देख रहे हैं ऑफ डेंटिस्ट एंड जनरली मेडिकल प्रोफेशनल्स का भी, वो इतना इंक्रीज हो गया है. जैसे मैंने चीजें बताई कि दूसरों को, हम अपने फेलो प्रैक्टिशनर्स को देख रहे हैं कि जो डेथ्स के रेट्स हम सुन रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं. विद दैट अगर मैं जनरली बात करूं कि व्हाट आई वुड आस्क फ्रॉम आवर कम्युनिटी इज कि आप अपना ख्याल रखें सो दैट हमारे डॉक्टर्स, हमारे डेंटिस्ट जो हैं वो प्रोटेक्टेड हों. अगर हम ये बात करें कि डेंटल कम्युनिटी को अगर किस तरह से इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं या डेंटिस्ट को किस तरह से चीज़ें बेहतर मिल सकती हैं, वो यही, आप एक मेजर गैप जो देखेंगे वो ये है कि दूसरे सारे डोमेन्स या मोस्ट ऑफ द डोमेन्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन से फ़ायदा हो रहा है और बहुत अच्छे से वो हो गया, लेकिन डेंटल इश्यूज जो है बहुत कम जो है वो ऑन स्क्रीन डील हो सकते हैं. वो ऑन स्क्रीन इतने ज्यादा हो ही नहीं सकते. व्हाट कैन दे डू? आपके जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं हु आर टेकिंग डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. डेंटल्स कितने इश्यूज हैं जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑन कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ज्यादा. सो दे हैव टू बी देयर. फिर आप पीपीई पहन रहे हैं और जो भी सारी चीजें कर रहे हैं, दे हैव टू बी देयर. सो वहां पर अगर हम इस चीज को एज अ क्वेश्चन लें, एज अ प्रॉब्लम लें और इसका कोई सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करें कि इसके बारे में क्या हो सकता है. लाइक अगर दूसरे डॉक्टर्स के लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स किए, तो डेंटिस्ट के लिए और क्या हो सकती है. दैट इज समथिंग वी कैन हैव रिसर्चेस ऑन, और दैट इज समथिंग वी कैन सी कि इसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीजें आए जो कि हमारे डेंटल बॉडीज को, जो डेंटिस्ट हैं उनको थोड़ा सा ईज मिले इस चीज में से. अदर देन दैट जो भी इवन इफ दे आर नॉट सीइंग पेशेंट्स या कम पेशेंट्स देख रहे हैं या बिजनेसेस बंद हो गए हैं, जो पहले भी उनका स्ट्रेस लेवल हाई था. यू टेक रिसर्चेस ऑफ प्रैक्टिशनर्स, आप डॉक्टर खौला की रिसर्च पढ़ लें, लाहौर बेस्ड रिसर्च है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर्स आर मोर प्रोन टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन. अब और ज्यादा, और स्ट्रेस, अगर इवन वो इतना नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं भी देख रहे, फिर भी देयर इज दिस स्ट्रेस कि हमें पेशेंट को डील करना है, उनको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है. वो डर डर के ही दे रहे हैं, और वेन एवर वी आर स्केयर्ड, वेन एवर वी आर इन फेयर, तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती. आई एम नॉट सेइंग कि हमारे डेंटिस्ट या हमारे कोई भी प्रैक्टिशनर बेस्ट नहीं दे रहे. आई एम जस्ट सेइंग द सिचुएशन इज ऑफ एज सच कि हम उस प्रेशर में, जब भी हम प्रेशर में होते हैं, हम डिसीजंस नहीं सही से ले पा रहे होते हैं, प्रोसीजर सही नहीं कर पा रहे होते हैं. तो उसको ईज में लेने के लिए हम सबको एज अ कम्युनिटी काम करना होगा, चाहे वो डेंटल एसोसिएशन बॉडीज हो, चाहे वो हमारी कम्युनिटी हो, हम आम आवाम जो है, हम सबको साथ मिलके इस चीज के लिए काम करना पड़ेगा. एंड द इंडिविजुअल मैसेज टू आवर डेंटिस्ट जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं या ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, आई कैन ओनली से फॉर नाउ इज focus on your health.
फॉर नाउ, फोकस ऑन योर लाइफ फॉर नाउ। जो भी चल रहा है, जिस भी पेस से चल रहा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग बट टू सर्वाइव इन दैट, उसके साथ साथ हम लेकर जाएं। बट स्ट्रेस में आने से, इस चीज को ओवरथिंक करने से, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज मेकिंग आवरसेल्व्स प्रोन टू COVID-19। एंड इफ वी, खुदा न खास्ता, इफ वी डू गेट COVID-19, तो उस स्ट्रेस की वजह से वी वोंट बी एबल टू कोप। If you take researches, if you read reviews in that, जिनकी stress levels high हैं already, जिनका defense mechanism anxiety को cope नहीं कर पा रहा होता, वो already इस चीज में जब आ जाते हैं तो उनकी body react नहीं कर पाती उस तरीके से। But those who are in controlled nature, जो कि इस चीज को moment by moment लेके जा रहे होते हैं, वो ज्यादा जल्दी cope कर पा रहे होते हैं। So the only message for now from survival point of view would be to take care of yourself, because you come first. Yes, you are a dentist, yes you have a family, yes you have to pay bills and everything, but सबसे पहले आपकी जिंदगी, आप, all of us are thankful for our doctors, for our professionals, for our dentists, कि वो जाते हैं फील्ड में, क्योंकि वही बात कि जो चीज़ स्क्रीन पर उनको नहीं आप केटर कर सकते, तो आप उनके लिए जा रहे हैं, इन पर्सन उनको डील कर रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बट देन अगेन योर लाइफ कम्स फर्स्ट। सो अगर आप स्ट्रेस में हैं कुछ, डू टेक अ ब्रेक, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन टेक स्टेप बाय स्टेप। Right, a very brilliant and detailed answer for the dental professionals who are listening to us, or the dental graduates who are listening to this lecture right now, कि आपको अपनी हेल्थ से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, as नायाब rightfully said। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल हार मान जाएं, या फिर start focusing on things which you have, which you can do at your home, और जितना कम personal contact हो, आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें करें। I know a lot of people who've done this, that they've, as you said, that opportunity arises and you have to grab the opportunity by the scruff of its neck, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसी पेंडेमिक को यूज़ करते हुए अपने बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और उस पर बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर मतलब डेवलपमेंट आई है। द प्लेटफॉर्म विच यू आर यूजिंग राइट नाउ, इसका तो किसी को पता ही नहीं था पहले, बट थ्रू पेंडेमिक what has happened is it has become the main mode of communication between a lot of people. So this is an example for everybody who's watching, that grab the opportunity and live right now, start planning, but अपनी जो present है उसके ऊपर आप ज़्यादा concentrate करें। And brilliant answer and a very detailed talk on this particular area for dentists. नायाब, आपने बात की burnout की, suicide की, तो और you talked about the fatigue as well, mental fatigue। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम डिस्क्राइब करें, जस्ट यू कैन से 3-4 लाइनर्स, तो व्हाट इज बर्नआउट टू यू, एंड बर्नआउट और मेंटल फटीग को आप कैसे क्लासिफाई करेंगी, एंड डिप्रेशन को कैसे क्लासिफाई करेंगी। बेसिकली हम जो लेमैन है वो ये समझता है कि सारी चीज़ें बहुत, आई नो, थोड़ी इंटर रिलेट करती हैं, बट आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी इन सब चीज़ों की जिसको हम जो है क्लासिफाई करते हैं कि नहीं यार, दिस गाय और दिस गर्ल इज इन डिप्रेशन, और एक्यूट डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, और दिस गाय इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल फटीग, और दिस पर्सन इज अ बर्नआउट केस। और तो बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ जो सुन रहे हैं हमें, उनके लिए कि आप क्लासिफाई करें कि ये 3-4 चीजें कैसे आप इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, सो बर्नआउट जो होता है वो आपका ड्यू टू स्ट्रेस, जो इंटेंस लेवल ऑफ एग्जॉशन होता है मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, उसको हम बर्नआउट कहते हैं। सो स्ट्रेस की वजह से ही बर्नआउट के स्टेजेस होते हैं, 4-5 स्टेजेस होते हैं उसके, जिसमें फॉर एग्जांपल देखें आप, फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं हनीमून पीरियड कह रहे होते हैं, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपने जितने भी काम वगैरह हैं आपने वो उठा लिए, आपने यू आर डूइंग योर असाइनमेंट्स, यू आर डूइंग इट टू योर फुलेस्ट, आप वो चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा होता है, आप उसके बाद जो है थोड़ा रियलाइज कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आपने पेशेंट लोड ले लिया अपने ऊपर कि हाँ मैं ये भी चीज़ कर लूँगा, या मैं इसको भी देख लूँगा, ये आपने साथ साथ उसमें
कर लिया, ठीक है, तो वो आपका एक स्ट्रेस पीरियड यहाँ पर आ जाता है। एंड देन फिर आपका जो बर्नआउट फेज आता है, वहां पे वो पॉइंट आपको लेकर आते हैं वेयर आप इतने एग्जॉस्टेड होते हैं दैट cynicism also takes place. Now what cynicism is कि इसको हम depersonalization भी कहते हैं, but more of it is loss of engagement, basically loss of engagement in your work. So the work that you used to love doing, the work that you were passionate about, the work that was basically some sort of enjoyment too for you कि मैं ये कर रहा हूँ अपने profession में या कुछ, उसमें आपकी engagement खत्म हो जाती है, उससे आप डिटैच्ड फील कर रहे होते हो। इरिटेशन जो है बर्नआउट का बहुत बड़ा एक सिम्टम होता है, एक बहुत आप पिक कर लेते हो कि इरिटेशन हो रही है, एंड देन यू नो यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ, यू आर वेरी फ्लैट फेस कि हाँ पेशेंट आया, आपने देखा और काम किया, आप डिसीजन सही से नहीं ले रहे हो, आप बिल्कुल कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट एंगेज्ड इन इट। एंड आई से वन थिंग, अक्सर जब हमारे बर्नआउट की बात आ रही होती है, स्पेशल जब हम जॉब बर्नआउट की या वर्क बर्नआउट की बात कर रहे होते हैं, उसमें कहती हूँ कि हम सब अपने जिंदगी गुजारने का एक तरीका रखते हैं। और जो भी हम जॉब डिसाइड करते हैं, जो भी हम अपने लिए प्रोफेशन डिसाइड करते हैं ना, वो मोस्ट हमारे 24 आवर्स का मोस्ट हिस्सा जो है वो ले लेता है। 9 to 5 इफ वी आर वर्किंग, उसके बाद भी हम उसके ऊपर कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ। So if you think that you want to live your life for all these hours, for example, more than half of your day, you want to live in a way जो कि बिल्कुल एक फ्लैट तरीका है जिंदगी गुजारने का, because your job is your life, and are you planning your life that way कि मैं गया काम किया, engagement नहीं है, कुछ भी वापस आ गया? Are you planning it that way? So that means maybe you are in a wrong field, or you are in burnout phase, or you need to do something about it. क्यों? क्योंकि your job should be something जिसको आप बहुत enjoy करें, because it is the life you are choosing for yourself. आप उसको गुजार रहे हैं, उसको enjoy कर रहे हैं fullest. So at any point you feel like इतना stress हो गया, इतना exhaustion का peak है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने सही से assignments नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी आपके tasks हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, that comes and you need to have a cross check कि ये मैं enjoy क्यों नहीं कर पा रहा, because of stress, because of the workload, इस वजह से हो रहा है या कोई और रीजन है। इसमें वो सब भी चीजें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव फैमिली इश्यूज गोइंग ऑन, और आपका वर्कलोड इतना है, आपके केस लोड आपका इतना है, एंड यू आर अनेबल टू केटर इट, तो वहां पर भी हम बर्नआउट को चेक कर लेते हैं कि इट इज देयर और नॉट। ऑल्सो अगर आपका बर्नआउट लेवल हाई है बहुत ज्यादा, यू आर गोइंग इन टू बर्नआउट सिंड्रोम, तो आपके पेशेंट की सेटिस्फेक्शन लेवल, रिसर्चर्स भी यही कहते हैं कि वो बहुत कम होगी, फिर चाहे वो आपके एटीट्यूड से हो या आपके काम से हो, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगी। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। राइट, सुसाइड के ऊपर बात करें अगर, तो हाउ कैन दैट बी प्रिवेंटेड? बिकॉज वी हैव सीन, एज यू सेड, थ्रू कोविड, जो डोमेस्टिक वायलेंस एंड देन सुसाइड रेट्स, स्ट्रेस लेवल, सब चीज़ें बहुत बढ़ी हैं। तो the area of suicide, how would you, if I tell you to sum it up in 3-4 liners, that iski prevention in this particular era of COVID, to For usko professionals, for professionals, yes, and for people like layman people as well. सुसाइड के बहुत सारे जो है स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं वेयर यू गेट इंडिकेटर्स। तो उसमें आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे या फर्स्ट कोई भी आपको लग भी रहा है कि दे आर डिप्रेस्ड और दे आर एंशियस एंड दे आर हार्मिंग देमसेल्फ, यू नीड टू पिक दैट अप। कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, यू नीड टू टेक देम टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प देयर एंड देन। उसको आप you cannot give it a chance कि हाँ खुद ठीक हो जाएगा, खुद ठीक हो जाएगा। even if you have a hint कि ऐसी कोई चीज हो सकती है, तो आपको एकदम से एक्शन लेना है इस चीज के लिए। However, for professionals, एक जो gap I'm seeing more often is professionals hardly take help. They don't seek help that often.
उन ज़्यादा, क्योंकि दे आर केयर गिवर्स, केयर जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो अपने आप के लिए अपना टाइम भी नहीं निकाल रहे होते हैं. दे डिसमिस whatever feeling they are having, they dismiss the burnout level, they dismiss the depressing feelings. तो वहाँ पे वो प्रोफेशनल्स जो है ना थेरेपी सीख करते ही नहीं है. आपको बहुत जो इनिशियल लेवल होता है, आपको वहीं पर जो है अपने आप को चेक एंड बैलेंस करना होता है. माय मेजर वर्क इज फॉर प्रिवेंशन, और मैं इस पे बहुत बिलीव कर रही हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी भी हाउस ऑफ पेबल्स एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, रिपल्स के नाम से वो प्रोग्राम है, दैट इज फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज वी फाउंड दिस गैप कि स्टूडेंट्स दे आर नॉट अर्निंग, देयर पेरेंट्स आर नॉट सीरियस अबाउट थेरेपी, तो वो उनको लेकर नहीं जा रहे होते. एंड if they are waiting till the point कि मैं graduate हुआ then I'll earn और फिर मैं therapy को के लिए pay कर सकूंगा, फिर मैं चला जाता हूँ, sometimes वो बहुत late हो जाता है इस चीज़ के लिए. So we designed a program कि जहाँ पे उनको थोड़ी कुछ help provide हो जाए from in short term therapy, goal based therapy and on reduced cost. तो स्टूडेंट्स को अगर हम इस कैटेगरी में लेकर आएंगे, वो हमारा बहुत हद तक एक प्रिवेंटेटिव मेजर्स हम क्लियर कर लेंगे. तो हम सबको, चाहे हम प्रोफेशनल्स हैं, लेमैन हैं, जहाँ पर भी आपने स्ट्रेस लेवल्स देखे, मैरिज में कोई इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप कोई इश्यूज आ रहे हैं, एकेडमिक्स में इशू आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारी चीज कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आपको बहुत उसका जो इंटेंस पीक पे जब वो लेकर आ जाते हैं, वो सुसाइड की तरफ लेकर आ जाते हैं, कोमोर्बिडिटी वहां पर हो जाती है. तो इट इज बेटर कि फर्स्ट स्टेप्स पर ही आप उसको केटर कर लें, आप जाएं प्रोफेशनल के पास. एंड देयर इज एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है इस चीज के बारे में कि वी आर गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट देयर एंड देन दे स्टार्ट थेरेपी, और वो काफी महीनों तक चलती है. नहीं, यू कैन टेक अ फ्यू कंसल्टेशन सेशंस एंड सी कि व्हाट आर योर कोपिंग स्ट्रेटजीज, लाइक आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में, सो दैट वो जो इशू है ना, वो वहीं पे बंद हो जाए, वो वहीं पे केटर हो जाए, वो बढ़ता ना जाए. Perfect, brilliant answer to that, and I'm sure people who are listening, they'll. I'm sure or I'm hopeful that if they have any problems, God forbid, but अगर उनको कोई problem है, because this is something which is happening, and we should accept it, because you've done your masters in this, and you're basically you can say an expert on this thing, and हर चीज़ के हर job के अंदर कोई ना कोई expert होता है. Like dentist, we have different specialities as well in our particular fields, and then aapki apni you're an expert on this, so people should use us rather than hum dentistry ke andar bhi I usually talk about this, that when the jab sar se pani guzar jata hai tab patients hamare paas aate hain. True, very true. So that is something which needs to be, it is it's changing, but it's not at a rapid pace, but it is changing, and I'm hopeful that in terms of depression and mental health, that people start taking it seriously. And because again, as you said, you're only damaging yourself, और आप अपनी जो आपकी capability है, if you can do something at 90% of your capability, it drops down to, I don't know, maybe 45-50%. बिल्कुल बिल्कुल. And Saad, sorry to cut you off here. Saad, can you hear me? Answer is that if you want to sum up this whole session, and आपका last message क्या होगा जो हमें सुन रहे हैं, and the next thing is, what should organizations do at their level to stop or to halt this particular situation in terms of mental health? Like for example, I'm talking about Pakistan Dental Association. Let's take that into question, that what measures from your perspective, since you're an expert on this. So if I tell you to sum up like 4 or 5 pointers for them, that what they should tackle or what they should do at a national or an international level or a regional level, so that those particular measures should be followed by us dentists, and that should be taught to the dental graduates as well, कि आपको ये सारी चीजें करनी है, and it will only help you, and if it will help you, you will obviously spread that message to the community. So just 4 or 5 liners on that.
For dental associations, I would say there are two things that can be done, जो कि बहुत help कर सकता है. One, to conduct researches on any matters that are students who are studying BDS, MBBS, उनके researches करना and then finding out that problem. ऑल्सो उसके साथ साथ वहीं पर जो हमें इंटरव्यूज वगैरह में बात पता चल जाती है फ्रॉम आवर स्टूडेंट बॉडी, फ्रॉम आवर प्रैक्टिशनर्स के इशू क्या है और उसको किस तरह. अक्सर क्या होता है हम लेसे फेयर मोड में चले जाते हैं. लेसे फेयर इज अ लीडरशिप स्टाइल जहाँ पे होता है कि एक्सपर्ट्स ही जो है उसका कोई सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, बट एट टाइम्स हम उनसे कंसल्ट नहीं कर रहे जो डायरेक्टली उस चीज से गुजर रहे होते हैं. सो इफ इट्स अबाउट स्टूडेंट बॉडी, वी शुड डायरेक्टली बी टॉकिंग टू देम, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, एंड वी शुड नो बेटर कि उनको क्या इश्यूज आ रही हैं, व्हाट आर देयर कंसर्न्स जो कि हमें फेस करने, जो कि हमें जो है टैकल करने. तो एक तो इस तरह की रिसर्चेस होनी चाहिए. एंड सेकेंडली, if you look into international schools and universities जो कि medical field से related हैं, वहाँ पे psychologists होते हैं, counselors होते हैं, जो कि through and through they make them learn how to combat your stress, how to deal with it. Compassion fatigue अगर आ जाता है, आप कितने हद तक किसी भी पेशेंट के साथ कितने हद तक you can be empathetic, और कहाँ पर you should identify ये, you know, I'm not loving this field, I'm not loving my patients, I'm not being careful about them, और मैं एक autopilot mode पे, एक robotic way में बस करता ही चला जा रहा हूँ. ये सारी चीजें आप जब स्टूडेंट लाइफ से ही अपने इनिशियल फेज से ही जब सीखते हुए आएंगे, बाय कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट, बाय कंडक्टिंग सच वर्कशॉप्स जहाँ पे एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा होता है, एंड हैविंग एन इजी एक्सेस, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि है ही नहीं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स हैं ही नहीं वहाँ पर, तो स्टूडेंट्स किसके पास जाएं, और अगर हैं भी तो फॉर 5000 स्टूडेंट्स देयर इज ओनली वन साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल. So that's again unfair. कितने एक psychologist कितने deal कर सकते हैं? To go out of the university, to go out of the institution and address their issue, जो भी वो एक psychological issue आ रहे हैं, वो उनके लिए मुश्किल है. Student body के लिए it's difficult. और मैं खास तौर पर मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात करें, दैट इज व्हाई डेंटल एसोसिएशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड मेक इट अ पॉइंट कि साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स अवेलेबल हों ऑन कैंपस, इन इंस्टीट्यूट्स, इन द ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि डायरेक्ट आप अप्रोच कर लें. यू डोंट फील ओके, यू फील स्ट्रेस्ड आउट, जस्ट गो टू द साइकोलॉजिस्ट, हैव वन कंसल्टेशन सेशन जो कि 45 to 60 मिनट्स का होता है, एंड यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, यू विल अंडरस्टैंड समथिंग, आप रिफ्रेश हो जाओगे एंड यू विल डू मच मोर बेटर. सो अगेन बहुत इनिशियल लेवल पे, बहुत प्राइमरी लेवल पे हमें ये स्टेप्स लेने होंगे. फर्स्ट जिसमें रिसर्च आ जाती है, एंड सेकेंडली हैविंग mental health professionals on board and letting the students have the direct access to them. Absolutely brilliant, because जिस तरह आपने sum up किया कि the institute should have particular experts, और साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली, बिकॉज ये हमें बर्नआउट जैसे सिम्टम्स और कंपैशन फटीग जैसे सिम्टम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, सो ये जितना जल्दी टैकल हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है. थैंक यू नायाब फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन, and I'm sure we'll be having another session soon, inshallah, through our platform. And in the end, I would like to ask you that आपको कैसा लगा session? How was your feedback towards the session? Thank you so much, Saad. It was a wonderful session also because कि जब हम आवाम के लिए तो ये चीज़ कर रहे होते हैं, but when we are focusing on our professionals, कि उनकी भी problems हैं, they are humans too. They are not immune to say COVID. They are not immune to mental health issues. उनके साथ भी हो रहे हैं. When we will address it, when we will acknowledge it that they are going through it, and we need to have more professionals on board, या उनके लिए भी awareness programs करने होते हैं, that's how हम अपना एक कम्युनिटी के अंदर एक रोल प्ले करके और चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे. बट इफ वी विल हैव दिस माइंडसेट कि नहीं, हम सिर्फ बाकी जो प्रोफेशनल्स नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है, उनकी हेल्प करते जाएं और हमारे डॉक्टर्स को किसी हेल्प की नीड नहीं है, तो हम बेसिकली एक गलत आइडिया दे रहे हैं ना, कि मैं ही नहीं जाऊंगी, मुझे कोई मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं ही नहीं जा रही हूँ किसी के पास, आप नहीं जा रहे हैं किसी के पास, तो हमारा पेशेंट क्यों जाएगा, उसको इस चीज पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा. बट व्हेन पीपल आउट देयर विल सी ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स
कि नहीं प्रोफेशनल्स भी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी अपनी तबीयत के बारे में बात कर रहे हैं, then definitely we need to look into it too. So it will be a wonderful thing for everyone, I believe. Thank you so much for doing that for. Thank you, Nayab, and it was a wonderful session. And I hope के जो pointers Nayab ने दिए मैं खुद भी इनके ऊपर implementation करूँगा. And it was a wonderful session. So in the end, I'll take my leave now. And thank you, Nayab, again for your time. And the people who are watching us, you can watch this show on our Facebook page. You can subscribe to our YouTube channel, and you can also follow us on Twitter. So that is it for our session for today. And I'm sure you guys will enjoy this session, and you will implement all those things which Nayab Zafar has just told us through this session. So thank you again for listening, watching, and I'm hopeful that you will join us for our other videos as well. So thank you, take care, and Allah Hafiz.